अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम all. This is our 16th session on this course. So let's get started. Last time we had some jargon, so let me very quickly go over that so that we have a connected discussion today. So E is the electric field intensity. It has three components. D is electric flux density, H magnetic field intensity. So ये जो E or H को we will often just call them electric field and magnetic field. We can often skip intensity, like in they are in reality intensity. So D and B are the flux density vectors and the current density and volume charge density. And last time we also looked over these constitutive relationships for the linear homogeneous and isotropic medium जो हमने डिस्कस किया था जिसके अंदर D is equal to epsilon E relative permittivity and B is equal to mu H where mu is the relative permeability and J is equal to sigma E is your conductivity of a medium. And we also have these relative permittivities जो हम define कर देते हैं as epsilon over epsilon naught and mu r is equal to mu or mu naught. अच्छा इसके अलावा just very quickly recapping, this is our Faraday's law, उसका इंटेग्रल फॉर्म और उसका डिफरेंशियल फॉर्म. और अब इन इक्वेशंस को वी कैन इटरेट इन आवर वर्ड्स मैथमेटिकली. अब हमें इन इक्वेशंस की मैथमेटिकली समझ आ चुकी है, इनका क्या मतलब है. फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड will be curly in space if B changes in time. And similarly, H will be curly in space. It would be changing in spatial coordinates if D is changing in time. Or remember, D and B are basically your E and H. So a couple differential equations हैं, and you look them in the same way as the voltage and current equations we see earlier in the earlier part of the course. Or similarly, ये Gauss's law है, amount of charge present in a system, ये उसका divergence और ये non-magnetic monopoles. And we converted these equations from integral to differential form by using these Stokes and the divergence relationship, divergence theorem. अच्छा एक और equation है which I want to place it here to complete our table. That is the equation is of conservation of charge. Conservation of charge क्या कहता है? Fundamental principle है. We know that in a fundamental principle, charge can neither be created. Charge can be neither be created nor destroyed. So neither be created nor destroyed. ठीक है, ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसका हमें बचपन से पता है. we know that fundamental principle from our early childhood. Let's write its mathematical equation और उसको फिर हम मैक्सवेल के साथ फिट कर देंगे to know more on this. अच्छा, as an example, you can see generally if there is an area, right, and some, because ये सारे जो these symbols which we defined all are vector symbols, right? You need not to be constrained yourself that we have the actual conductors flowing. They could be existing without conductors. So other than the row, everything is a vector. So let's say a general surface area here, this could be anything, this could be conductor or this could be anything, and we have a J coming out of out of that area. We know that the current जो होगा, जो इस एरिया से बाहर निकल रहा होगा,
that would be J, it's a closed area, J dot ds, and you know J is amperes per meter square. So ds is meter square. You take an integral over the closed surface, this guy, and you have the current. And we know that this is actually equal to what? The amount of the charge, the rate of the charge which is present inside. अगर करंट बाहर ज्यादा निकलेगा तो चार्ज कम हो जाएगा with time, नेगेटिव साइन है. अगर करंट कम बाहर निकलेगा तो चार्ज ज्यादा रहेगा अंदर because of this negative sign. That's a fundamental relationship. इसको हम बहुत आराम से by using this divergence theorem, this guy, by using this divergence theorem, we can divergence theorem ये मुझे बताता है कि this is equal to what? Del dot J, ये हम अगर ऊपर देखें F dot ds को del dot J कर दें हम over the volume dV, right? I can use this through the divergence theorem. Or, you know, I can do this thing that minus d by dt. I will also, instead of charge, I will take the volume charge density. Volume charge density का मतलब ये है कि this was in the coulombs, this is in the coulomb per meter cube. कोई फर्क नहीं पड़ता. Which means that I have this equation, del dot J is equal to minus partial rho over partial t. ये एक और equation है which exists here, and we often call it, other than the charge can neither be created nor destroyed, or we can also say, we often say this as a continuity equation. So that's another equation which goes with Maxwell's equations. अच्छा, अब quickly कुछ चीजों को जरा ऊपर surface से देख लेते हैं before we dive into the actual problems. पहली बात ये है कि let's count these variables कितने हैं. I have ये कितने हैं? 3 इलेक्ट्रिक फील्ड, 3d 6, 3h 9, 3b 12 और 3j के components 15, and the last one, the 16th, is your charge is your charge density. ठीक है? So that makes, अगर किसी सिस्टम में हम जेनेरिकली बात करें, so this makes 16 unknowns. कोई भी हमने जेनेरिक वेक्टोरियल सिस्टम सॉल्व करना है completely, regardless उसमें कितनी भी simplicity है, we have these 16 unknowns present in the system. ठीक हो गया? अच्छा, अब हम ये देखते हैं क्या हमारे पास 16 equations भी मौजूद हैं to actually solve this 3D vectorial system. So let's quickly count that. 3 equations ये वाली, 3 B की, 3 इसकी, 9 equations ये हो गई, 3 equations ये 12, 3 equations ये 15, और उसके अलावा you can have one of this continuity equation, del dot J is equal to minus rho partial t, जो कि टाइम में हम लिखना चाहते हैं चार्ज को, जनरली स्पीकिंग टाइम में चार्ज वेरिएशन. So we have 16 equations. So we have 16 equations and 16 unknowns. इसका मतलब है कि we can solve the system. और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल बात है जो कभी भूलना नहीं है. अगर आप ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस को देखोगे, इसमें कहीं पर स्क्वायर टर्म्स नहीं है. There are no square terms. So Maxwell's equations are linear equations, linear simultaneous equations. So you can think this Maxwell's equations in a very simpler way. कि okay, यार मेरे पास 16 linear simultaneous equations and 16 unknowns, and that is it. That is it. There is nothing else going on. इसको बिल्कुल आप इस तरह सोच सकते हैं. अगर मैं आपसे कहूं x plus 2y is equal to 4 और 2x plus 3y is equal to 7 में x और y की वैल्यूज निकालो, आप बड़े इजीली x और y को एलिमिनेट करोगे and you can figure out x and y. Same thing here goes to Maxwell's equation. So Maxwell's equation से घबराना नहीं है. ये simple 16
लीनियर इक्वेशंस हैं जो कि आप इनको सॉल्व कर सकते हो अननोन्स के लिए। अच्छा, अब सवाल ये है कि इनको हम कुछ मैं जनरल कमेंट्स करने लगा हूँ फॉर अनदर 1 or 2 minutes एंड देन विल डाइव इनटू स्पेसिफिक्स ऑफ ईच इक्वेशन। सवाल ये है कि इसको हम हल कैसे करें इन सारी इक्वेशंस को। देखें, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। अगर आपका फॉर एग्जांपल as I gave this example earlier too, that if you have a rectangular antenna, let's say आप उस पे electromagnetic field solve कर रहे हैं, तो you will cast all these equations in the rectangular coordinate system और उसको solve करेंगे। Similarly, अगर आपके पास cylindrical कोई body है जिसके ऊपर electromagnetic fields आप solve कर रहे हैं, तो you will cast these equations into the cylindrical coordinate system and solve them and so on and so forth. Spherical के लिए आपको spherical coordinates में आप इनको solve कर लो। solve करना क्या है? ये simple linear equations हैं जिनको हमने solve करना है, ठीक है। Generally speaking, इस course के अंदर most likely for most of the cases we will stay in 1D in 1D environment. हम possibly 1D में रहेंगे तो हम 3D pictorial में शायद ना जाएं, just to make more sense. ठीक हो गया? So that's general few comments. Now let's dive specifically on Faraday's law. Let's have discussion on Faraday's law today. थोड़ा सा Faraday's law को discuss कर लेते हैं। Faraday's law भला क्या है? अच्छा, let me show you an animation, ठीक है, और वहां से फिर इसको डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। So, ये नजर आ रहा है सारों को ना, एप्लेट जिसमें ये मैग्नेट और कंपास है, देख सकते हैं ना? यस सर। अच्छा, अब मैक्सवेल की इक्वेशन अपने जहन में रखें, फैराडेज लॉ की। वो क्या है? डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। वो इक्वेशन क्या बताती है मैथमेटिकली? वो ये बताती है कि अगर बी टाइम में चेंज करेगा तो ई करली होगा, देयर वुड बी सम कर्ल प्रेजेंट इन ई। लेट्स सी, ये आप लोग बचपन से डेमोन्स्ट्रेशन देखते रहे हो, ये बड़ी सिंपल एनिमेशन है ऑफ दैट इक्वेशन। अब अगर अभी आप देख सकते हो मैग्नेट एक बना हुआ है, ठीक है, इस मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, अभी टाइम में नहीं चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर टाइम में नहीं चेंज हो रहा तो इसका मतलब है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अराउंड नहीं होगा पॉसिबली, ऐसा ही है ना? इक्वेशन तो यही बताती है। लेकिन अगर मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा हलाना शुलाना शुरू कर दो मैग्नेट को, टड़क 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 टड़क, तो देयर इज अ changing magnetic field into the in the system, changing magnetic field in time। इसका मतलब है कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसका कर्ल होगा, ठीक है? बात समझ आती है? चलो, ये थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल होगी, थोड़ी सी मोर। ये आप प्लीज रिपीट कर देंगे? अच्छा, सो व्हाट आई सेड कि अभी ये मैग्नेट पड़ा हुआ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है, देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन टाइम। रिमेंबर, इस इक्वेशन को ज़हन में रखना है आपने। दिस इक्वेशन हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, डेल क्रॉस ई माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी। अगर इस इक्वेशन ने एग्जिस्ट करना है और इसका इंटीग्रल फॉर्म उसको भी रख लेते हैं पास, वो क्या है? माइनस डी बाई डी टी बी डॉट डी एस, क्लोज्ड सरफेस और कॉन्टूर। सो नो सॉरी, नॉट क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस एंड क्लोज्ड कॉन्टूर। अगर इस इक्वेशन ने एग्जिस्ट करना है, यानी कि इसकी राइट हैंड साइड जीरो नहीं होनी, तो बी को या एच को, रिमेंबर बी इज व्हाट? बी इज इक्वल टू म्यू एच, इट हैज टू चेंज इन टाइम। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हियर, ठीक है? तो इस इक्वेशन को जहन में रखें। सो लेट्स सी दैट। अच्छा, इसको थोड़ा सा मोर एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल देख लेते हैं, मे बी थोड़ी सी ये ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो गई है। लेट्स से ये है मैग्नेट, ठीक है, एक कॉइल है। कॉइल क्या होती है? एक तार है, तार के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? ऐसा ही है ना, सारों को समझ है ना? तार इज अ मेटालिक कंडक्टर व्हिच कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब अभी ये मैग्नेट है, मैं इस मैग्नेट
के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम में चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को टाइम में चेंज करूंगा, ये क्या होना शुरू हो गया है? What happened? Because the magnetic field, because of the magnetic field, changing magnetic field, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है जो कि करली है, ठीक है। और वो करली है, उस कर्ल ने अगर आप कोई मेरी फिंगर देखिए, उस कर्ल ने ये जो लूप है, इस लूप के अंदर फोर्स लगाई है और इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर दिए हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कर ली है, इट्स पुटिंग ऑन द फोर्स, द इलेक्ट्रॉन एंड स्टार्ट्स मूविंग। और ये इंपॉर्टेंट है कि अगर इस मैग्नेट को मैं लेट्स से इधर इधर हिला रहा हूं तो कुछ भी नहीं हो रहा, बिकॉज ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल ओनली बी इन्फ्लुएंस्ड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं इधर हिला रहा हूं, so yes, there would be a curly electric field there, but not here. Okay, now this would start producing this current flow, and the bulb start glowing. ये एक वो बेसिक प्रिंसिपल जो आप लोगों ने अक्सर डायनामोस के अंदर you may have seen it earlier. अच्छा, इसका एक और बड़ी कमाल की जो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन है वो ये है कि जो जनरेटर है, जो आपका तरबेला डैम है या जो आपका वो मंगला डैम है, उधर कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है? फैराडेज लॉ के थ्रू। ये पानी गिर रहा है, तो टर्बाइन इज फ्लोइंग, वो डैम जो है वो पानी गिर रहा है, वो टर्बाइन का व्हील घूम रहा है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मैग्नेट लगा हुआ है, वो मैग्नेट जो है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कैसे प्रोड्यूस हो रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाई है उन मेटालिक कंडक्टर्स में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसने फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, एंड यू हैव ऑल दिस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बीइंग हैपेंड देयर। ठीक हो गया बात? ये बात क्लियर है? अच्छा, अब एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि अक्सर हम जो हैं, हम लोग फैराडेज लॉ जब सीखते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द तारें होती हैं, हम समझते हैं फैराडेज लॉ जो है इट इज उसके लिए बड़ा लाजमो मलजूम है कि तार हो। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एंड आई वुड लाइक कि अगर कोई इसको जवाब दे, कि वो जो इक्वेशन हमने लिखी है, मैथमेटिकल इक्वेशन फैराडेज लॉ की, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी, या वो जो इंटीग्रल में लिखी है, उसके अंदर कई मेटालिक कंडक्टर जो है वो कहीं मौजूद है उस इक्वेशन के अंदर? यस, एनीबॉडी वांट टू रिस्पॉन्ड दैट? तो करेगा रिस्पॉन्ड? कोई नहीं करेगा। ये मैं इक्वेशन को जब देखूं, इस इक्वेशन को, इसमें कहीं पर ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये कर्ल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बी है और ये टाइम है। इज देयर एनी वायर इनसाइड दिस इक्वेशन? नो। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है V over D के इक्वल, तो वो कहाँ से? नहीं, लेकिन वायर तो कहीं नहीं है, कोई ये मैथ की इक्वेशन नहीं कहती कि वायर है यहाँ पर। कहती है इक्वेशन की? नहीं कहती? नहीं सर जी, नहीं कहते। नहीं कहती ना। इसका तो मतलब ये हुआ कि जो फैराडेज लॉ है, इट इज ए जनरल लॉ, इट डज नॉट रिक्वायर अ वायर। इसकी जो बेसिक एसेंस है, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि कोई भी मीडियम हो, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एयर, वाटर, पहाड़, एनीथिंग, अगर वहां पर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है टाइम के अंदर, तो वहां पर करली इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा, पीरियड। दैट्स व्हाट इट इज। और यहां इसको मजीद थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत इक्वेशंस हैं। अगर हम ये देखें, वो जो दूसरी इक्वेशन है फैराडे की, दूसरी इक्वेशन जो है मैक्सवेल की, उसमें ये जो बी, या इसको चलो इस तरह लिख लेते हैं, म्यू और एच और डी, क्योंकि डी इज एप्सिलॉन ई। आप ये देख सकते हो कि अगर एच टाइम में एग्जिस्ट करेगा तो ई स्पेस में एग्जिस्ट करेगा विद कर्लिंग इफेक्ट, और अगर ई एग्जिस्ट करेगा स्पेस के अंदर, ठीक है, ई स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करेगा, तो ऑब्वियसली ई यहां पर भी एग्जिस्ट करेगा।
इस वाली जगह पे भी E एग्जिस्ट करेगा तो वो टाइम में भी चेंज होगा, वो टाइम में चेंज होगा तो H स्पेस में भी चेंज होगा। इन अदर वर्ड्स E और H कपल्ड हैं, इसमें से एक भी वेरिएबल टू मेक दिस इक्वेशंस वर्क, एक भी वेरिएबल टाइम में चेंज होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों टाइम में चेंज हो और दोनों स्पेस में चेंज हो, दोनों का कर्लिंग इफेक्ट हो। एंड दैट्स द होल दैट वेव प्रोपगेशन फिनोमेना, जिसको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, सो बॉटम लाइन ये है, a changing magnetic field in time will produce a curly electric field। ठीक है, और इसको हम फैराडेज लॉ को हम अक्सर जो हैं वो इस स्टार के साथ पढ़ते हैं। सो लेट्स लुक ओवर द स्टार अ लिटिल बिट मोर, बिकॉज यहाँ पर मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स कुछ पुराने आपके आई थिंक मिसकंसेप्शंस हैं, आई वांट टू रिमूव दैट। सो लेट्स कीप द तार देयर फॉर सम टाइम एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैराडे लॉ लिटिल बिट मोर। उसकी थोड़ी सी फिजिक्स को थोड़ा सा मजीद रिकैप कर लेते हैं। सो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक लूप है, वही तार वाला, लेट्स से तार है, यू नो आई कॉल इट एज अ तार, और उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इंक्रीजिंग है। लेट्स से दैट मैग्नेटिक फील्ड बी या एच जो भी आप कह लें, इंक्रीजिंग है इसके अंदर से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। अब इस मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि ये इस एरिया को पियर्स कर रहा है, इस एरिया को पियर्स कर रहा है, और ये टाइम में मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया को पियर्स कर रहा है, इसका मतलब है देयर हैज टू बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दिस जो कि करली होगा। ठीक है, बिकॉज वो इक्वेशन हमें ये बताती है कि वो करली होगा। अच्छा, अब वो किस तरह का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? हमें ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एग्जिस्ट करेगा तो इसके अंदर, इस लूप के अंदर एक करंट भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इस लूप के अंदर क्यों करंट क्यों एग्जिस्ट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक फोर्स है, तो वो फोर्स जो है, इस तार जो है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पर फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रॉन्स घूमना शुरू हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि वो जो करंट है उसकी डायरेक्शन इधर है कि इस डायरेक्शन में, लूप की किस डायरेक्शन के अंदर वो फ्लो करेगा? और वो बड़ा एक फंडामेंटल सवाल है। उसके लिए आप लोग हमेशा, बहुत सारे स्टूडेंट्स विदाउट थिंकिंग कोट करते हैं लेंजेस लॉ, कि जी वो लेंजेस लॉ है, वॉट एवर द फैक्ट। आई डोंट लाइक दैट एक्सप्लेनेशन अ लॉट। इन फैक्ट ये करंट की डायरेक्शन बड़े आराम से निकलती है इफ यू अप्लाई द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको ये पता है वेर एवर एक जनरल फिजिक्स प्रिंसिपल है, जहां पर भी करंट होगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, देयर वुड बी अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, रिगार्डलेस, चाहे वो, यानी कि हम चाहे मैग्नेटोस्टैटिक्स में हो या टाइम डायनेमिक्स में हो, ये एक जनरल प्रिंसिपल है कि वेर एवर देयर इज अ मैग्नेटिक, देयर इज अ करंट, देयर वुड बी मैग्नेटिक फील्ड। सो इस मैग्नेटिक फील्ड जो कि टाइम चेंजिंग है, इसकी वजह से अगर एक करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और अब मैं आप लोगों को मे बी लेट्स लुक ओवर इट। अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज करो, या अगर हाथ में कोई तार है, ये मैं आई गॉट दिस हैंगर फॉर यू। ठीक है, ये सारों को नजर आ रहा है, हैंगर नजर आ रहा है ना? सो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग, लेट्स से इस तरह देख लेते हैं, इस इन दिस डायरेक्शन है, ठीक है, तो करंट की क्या डायरेक्शन होगी? अगर करंट लेट्स से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, रिमेंबर, अब शायद थोड़ा सा वो मिरर इफेक्ट आ जाए, लेकिन आई होप यू आर फॉलोइंग मी। अगर मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द मेरी स्क्रीन के है टुवर्ड्स, ठीक है, हाँ, इंक्रीजिंग, और लेट्स से मैं अज्यूम करता हूँ करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो राइट हैंड रूल है वो ये कहता है कि अगर थंब इज पॉइंटिंग टू द डायरेक्शन, तो फिंगर कर्ल्ड वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट ये है तो इस डायरेक्शन में, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करेगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड को रीइंफोर्स करेगा। तो ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वॉयलेट कर देगा, बिकॉज द जो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल था जिसने करंट प्रोड्यूस किया, उस करंट ने दोबारा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया और उसने उस मैग्नेटिक फील्ड को मजीद एनहांस कर दिया। ये इम्पॉसिबल है। इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। अब आप देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड, लेट मी कीप दिस पेन हियर, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द पेन डायरेक्शन, सो अगर मेरा करंट इस डायरेक्शन में, अब आप देखो मेरी फिंगर्स जो हैं वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगी, तो वो उसको कम करेंगी, यानी कि जो मेरी खर्च हुई है एनर्जी, जो एनर्जी दे रहा है वो खर्च होगी।
So that is the principle we apply to find this induced current. And that's because of the law of conservation of energy. So इस केस के अंदर इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो करंट है वो that would be in let's say अगर ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में होगा, so this would be in this direction the current, ठीक हो गया, और ये करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और हमें पता है वो हमने एक ऊपर इक्वेशन लिखी थी J is equal to सिग्मा E, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो करली है वो भी इस डायरेक्शन के अंदर होगी, ठीक है, सो दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस करंट को वो प्रोड्यूस इस करंट के इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करेंगे एंड यू हैव दिस फैराडेज लॉ गोइंग ऑन, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात है, ये तो एक क्विक फिजिक्स हो गई, आई वांट टू स्पेंड फ्यू मोर मिनट्स ऑन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इक्वली ऑन दिस। लेट्स से कि ये मेरा लूप है एक, ठीक है, और ए और बी ये दो पॉइंट्स हैं, एंड लेट्स से ये सरफेस एरिया है, एंड लेट्स से रिमेंबर मैंने आपको बताया था ये जो ई डॉट डी एल है, बी डॉट डी एस है, इसमें जो कॉन्टूर की डायरेक्शन है याद रखना है, अगर आपने फॉर एग्जांपल मैंने कॉन्टूर इस डायरेक्शन के अंदर लिया है ये सी, तो थंब जो है वो एस की पॉजिटिव डायरेक्शन शो करेगा। लेट्स से मैं इस डायरेक्शन में सी ले लेता हूँ, ठीक है, इसको इस पाथ को मैं C1 कह देता हूँ, इस पाथ को मैं C2 कह देता हूँ, और इसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पियर्स कर रहा है, ठीक है, इस एरिया के अंदर से। तो अगर मैं ये फैराडेज लॉ जब लगाता हूं, अगर मैं ये कहूं इधर से लेके इधर मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करता हूं, ठीक है, ए टू बी, वो क्या होता है आपको पता है, इक्वेशन क्या है, ई डॉट डी एल, यू मे रिमेंबर फ्रॉम योर बेसिक्स लिटिल बिट। सो ए से बी अगर कॉन्टूर 1 में लेता हूं, ठीक है, और अगर मैं इसको दूसरी डायरेक्शन में लेट्स से मैं ए टू बी एक वोल्टेज है और मैं बी टू ए दोबारा मैं देखता हूं, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो मैं बी टू ए जा रहा हूं तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, अलोंग द कॉन्टूर 2, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, लेकिन इस कॉन्टूर में मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो ये कॉन्टूर का और डायरेक्शन का साइन ऑपोजिट है तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। आप ये देख सकते हो, एक बड़ी खूबसूरत बात है, आपकी यूजुअल सर्किट थ्योरी कहते हैं कि चाहे मैं वोल्टेज इधर से इधर मेजर करूं या मैं इधर से इधर मेजर करूं, मेरी एक ही वोल्टेज आएगी, लेकिन अब आप ये देखो फैराडेज लॉ ये कहता है कि अगर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो ये दोनों के दरमियान द डिफरेंस वोंट बी अ जीरो, इट वुड बी अ फाइनाइट नंबर जो कि इस लूप को पियर्स कर रहा होगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, आपने वो जो केवीएल सीखा हुआ है वो जब इस किस्म की सिचुएशंस हो, जब मैग्नेटिक फील्ड किसी लूप को पियर्स कर रहा हो एंड स्पेशली ये हाई फ्रीक्वेंसी हो, सो योर यूजुअल केवीएल मे नॉट बी वेरी एक्टिव हियर, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग। इसके एक और बड़ी खूबसूरत, इसी के थोड़ा सा मे बी शायद थोड़ा सा पॉइंट रिपीट कर दें, मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं इसके ऊपर। लेट मी, मे बी शायद थोड़ी सी अनक्लियर बात हो गई हो, लेट मी मेक अनदर मोर क्लियर एग्जांपल ओवर इट। लेट्स से दैट कि मेरा जो है एक ये एक लेट्स से एक लूप है, ठीक, दिस इज अ लूप आई हैव, और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पियर्स कर रहा है, ठीक है। फैराडेज लॉ ये कहता है कि कोई ना कोई वोल्टेज यहां पर वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, ऐसी बात है ना, एग्री करते हैं ना सारे लोग मेरे से? जी कोई बोले यस? यस सर। ठीक है, सो देयर वुड बी अ वोल्टेज व्हिच वुड अपीयर हियर। अब देखो आपकी, अगर आप ये सोचोगे अच्छा कोई बात नहीं, मैं जो है ना एक वोल्ट मीटर यहां रखता हूं और मैं ये वोल्टेज मेजर करता हूं, ठीक है, लेट्स से अब्दुल्ला थिंक्स ही विल डू दिस, लेकिन लेट्स से जमशेद थिंक्स दैट he wants to put the voltmeter here and do the measurement of the voltage. Let's see difference क्या होता है दोनों के अंदर।
पहले अगर मैं इसको देखूं, ये सिर्फ इस लूप को देखते हैं, ठीक है। इफ आई लेट्स से जो अब्दुल्ला वाला है वोल्ट मीटर, ये इसको मैं देखता हूं इस लूप को, ठीक है। तो क्या होगा, लेट्स कॉल दीज आर नेम्स ए बी एंड लेट्स से इसको V1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये कोई सरफेस एरिया S है और ये बीच में जो दो वोल्ट मीटर के दरमियान है कुछ सरफेस एरिया जो बीच में है, ये वाला दिस वन, ये डेल्टा S है, ये वाला बाकी जो है वो S है, ठीक है। और मैं एक कॉन्टूर बना लेता हूँ लेट्स से, क्योंकि अगर ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो मैं जब फिंगर्स को कर्ल करूंगा, जब ये बाहर निकलेगा तो मेरा कॉन्टूर लेट्स से इस डायरेक्शन के अंदर, आई ट्राई टू मेक the contour in that direction, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं ये करूं, let's try to apply the Faraday's law here। इस पॉइंट को मैं A और इस पॉइंट को मैं B कर देता हूं। So what would happen is what I'm gonna do, एक वोल्टेज ये है, मैं बेसिकली एक किस्म का मैं क्या करने लगा हूं, इस पॉइंट पे भी वोल्टेज लिखने लगा हूं, इस तार पे भी, इस तार पे भी और इस लूप के ऊपर भी, ठीक है। सो ये क्या कहता है, आई वुड राइट V1 प्लस, ठीक है, और A to B E डॉट DL, ये C वाला कॉन्टूर, ये वाला मैंने लिखा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, प्लस ये अब जो बाकी तार का है ये वाला इसका, सो ये क्या है, लेट्स कॉल दैट एज B to A, let's call the C1 contour is C1, इस वाले को, ठीक है। let's change the area, let's change the color little bit, नहीं ये वाला, oops ये, so let's call that ये C1, this would become E dot DL, और ये किसके इक्वल होगा, मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने कोई खास काम नहीं किया, मैंने क्या किया, इनका I just wrote this integral and this becomes minus d by dt B dot ds प्लस ये S वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, और ये वाला एरिया जिसमें से भी जा रहा होगा, प्लस डेल्टा S B डॉट ds, ठीक है। सो ये इस वोल्ट मीटर के लिए रीडिंग होगी। अब आप ये देख सकते हो, whatever the math you can see the math over it, let's say, और एक हम assumption अगर करें कि ये अगर इन्फिनिट तारे हैं दोनों, तो इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो इसको जीरो कर लेते हैं। सो यू कैन थिंक लाइक दैट, जो V1 आएगा वो बेसिकली इस सरफेस एरिया और ये जो बड़ा एरिया है इसकी कंट्रीब्यूशन की वजह से आएगा, ठीक है। अब आप गौर से देखो, लेट्स से वो जो जमशेद था, he did the voltmeter here, मैं दोबारा बनाता हूं, ये वाला वोल्ट यहां पर रखा था उसने, तो वो जो वोल्टेज मेजर करेगा वो बेसिकली जो सिर्फ और सिर्फ इस एरिया के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पियर्स हो रहा है उसकी मेजर करेगा, जो दोनों वोल्टेजेस डिफरेंट होंगी। यू कैन सी दिस थिंग, जब आपने वोल्टमीटर इधर रखा तो ये एरिया में से भी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा था, प्लस ये वाला एरिया, सो यू हैव अ डिफरेंट वोल्टेज रीडिंग एज कंपेयर टू when you place the voltmeter like this because of this Faraday's law। unless low frequencies के ऊपर हो तो डेरिवेटिव टाइम का बहुत स्मॉल हो जाएगा और आप इग्नोर कर सकते हो, फिर दोनों रीडिंग्स एक जैसी आ जाएंगी, ठीक है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन AC एनालिसिस, इन हाई फ्रीक्वेंसीज, जब आपके सर्किट्स बने होते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर, बिकॉज ऑफ वेरियस वायर्स अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड्स आपकी वायर्स के लूप्स को पियर्स कर रही होंगी और आपकी वोल्टेज रीडिंग्स को या वोल्टेजेस जो आपने कंसीव की होंगी उसको करप्ट कर सकती हैं। सो अ लॉट ऑफ केयर बीइंग टेकन टू शील्ड दोस थिंग्स सो दैट लूप्स के साथ अनवांटेड मैग्नेटिक फील्ड्स पियर्स ना करें, जिसकी वजह से आपकी वोल्टेजेस खराब हो सकती हैं। सो रिमेंबर, यहाँ से जो टेक होम मैसेज है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक लूप के अंदर अगर आपने वोल्ट मीटर लगाया है तो आपकी वोल्ट मीटर की लोकेशन जो है वो आपकी रीडिंग को
चेंज कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज बीइंग पियर्स्ड। ठीक हो गया? सो दैट्स वेरी की मैसेज व्हिच आई वुड लाइक टू गिव यू हियर। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो हो गई तार, इसके ऊपर तो कोई सवाल नहीं। आई थिंक जो एम्बिग्विटीज थी वो क्लियर हो गई हैं। हाँ, somebody was asking a question। ठीक है, ऑलराइट। हाँ, अच्छा अब आगे चलते हैं। लेट्स ट्राई टू डू एन एग्जांपल। थोड़ा सा अब वेक्टर कैलकुलस का इन्वोक करते हैं जो प्रिंसिपल्स हमने किए हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है, आपकी बुक की एग्जांपल है। हम इस फेरेडेज लॉ को थोड़ा सा मजीद अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं मैथमेटिकली इसको कैसे डील करना है। एग्जांपल 5.1 है, लेकिन मैं इसको डिफरेंट तरीके से करूंगा। आपका बुक डिफरेंट तरीके से कर रहा है। सो लेट्स से जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका एक सिलेंडर है। ठीक है, आपका एक सिलेंडर है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है which is defined as B naught sin omega t az। ठीक है, और एग्जांपल को ध्यान से फॉलो करना। एनी क्वेश्चंस आस्क मी, बिकॉज ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को मजीद बेहतर करेगी। और ये उसका फील्ड है। माय क्वेश्चन इज फिगर आउट E फॉर मी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा इस सवाल को हल करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन की। ये सारों को सिलेंडर नजर आ रहा है, राइट? एवरीबडी कैन सी दिस सिलेंडर। आप इमेजिन करो, वो जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है मैंने? बी नॉट साइन ओमेगा टी एजी। मैं वापस जाता हूं उसके ऊपर। बी नॉट साइन ओमेगा टी एजी मैंने लिखा है, विच मीन्स कि ये वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन है वेक्टर की। ठीक है, और ये इस तरह से डिफाइन हुआ है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर, दैट आर लेस देन आर नॉट, और ये वो टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। और ये आपका सिलेंडर है। सिलेंडर को आप सोचोगे वो जी में इन्फिनिटली लॉन्ग है और इस सिलेंडर के अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड, और लेट्स से ये जो सरफेस है ना सिलेंडर की, ये आर नॉट है। सो मैग्नेटिक फील्ड इस सिलेंडर के अंदर मौजूद है और बाहर मौजूद नहीं है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी स्पेस में फाइंड करना है। समझ आ गया प्रॉब्लम सारों को? अब मेरा सवाल ये है कि बिफोर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, आई वॉन्ट यू टू टेक ए पॉज फॉर फ्यू सेकेंड्स, और कोई अपने हेड में ये सोल्यूशन बना सकता है कि किस किस्म का इलेक्ट्रिक फील्ड का सोल्यूशन निकलेगा। आई एम नॉट आस्किंग यू एग्जैक्ट सोल्यूशन, लेकिन क्वालिटेटिवली किस तरह का सोल्यूशन होगा। सर इसकी जो इसे क्रॉस सेक्शन है उसके हिसाब से होगा 2 पाई आर एल, उसके हिसाब से इसके बीच में से या फिर इसके क्रॉस? नहीं, इसके इन होल स्पेस। लेट्स से ये सिलेंडर यहाँ मेरे कमरे में पड़ा है, एंड आई एम आल्सो इंटरेस्टेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके घर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस सिलेंडर की वजह से? just in the whole space. So I want you to take a pause here for a few minutes, for a few seconds, and think about कि solution क्या होगा। अभी मुझे जवाब ना दे कोई, just to think about, just take a pause here. 0, approximately 0. नहीं अहमद, it won't be 0. Let's think, let's hear from someone else too. कोई attempt करेगा? जी Zahra, you want to make an attempt over this? Sir, I'm still thinking. Okay. How about Obad? Sir, I have no idea. किसी को कोई आइडिया रिमोट सा भी हो कि किस किस्म का निकलेगा? जमशेद? सर मैं भी कंफ्यूज हूँ। अच्छा चलो यार, कुछ शूट समथिंग। मरियम? Sir, maybe something relating to the shape of the cylinder, जिस तरह से पहले वो कह रहे थे 2 pi RL, कुछ उस तरह से something along those. पूछ ही नहीं रहा कि स्पेसिफिकली कैसा, उसकी एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होगी। I'm just trying to develop कि आप
को क्वालिटेटिव अंदाजा हो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो। लेट्स से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं इस कमरे में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। पहला सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस सिलेंडर में है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे साथ वाले कमरे में होगा कि नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस सिलेंडर। लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन, हु थिंक्स होगा और हु थिंक्स नहीं होगा। आपके हिसाब से मुझे लगता है कि होगा, लेकिन बहुत स्मॉल होगा। अच्छा, नहीं सही, सिलेंडर प्लास्टिक का है मेटल का है, ये पूछ लूं। वो तो मैं प्लास्टिक या मेटल का है? एग्जांपल सिलेंडर की तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सो मे बी मेटल होगा। ओके, हम ये डिस्कशन को अनकंस्ट्रेंड ना कर जाएं। सो लेट मी, द पॉइंट ये है आपको कहने का कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या कोई भी किसी किस्म की भी आप मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने लगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक ए पॉज एंड यू थिंक लॉजिकली कि मेरा सोल्यूशन किस किस्म का डेवलप होगा, और क्योंकि मेरा मैथ के थ्रू वो आ ही जाएगा सोल्यूशन। एक बात बड़ी क्लियर है कि मैक्सवेल्स की इक्वेशन कहती है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो टाइम में चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ये बड़ा क्लियर है। कैसा होगा? कर्ली। कर्ली होगा, बिल्कुल। यानी कि कर्ली से मुराद ये कि ऐसे घूम रहा होगा, कहीं पर घूमता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और अगर वो कर्ल को आप गौर से सोचो और मैग्नेटिक फील्ड को गौर से सोचो, लेट मी गो बैक टू माय अगर आप अपने इमेजिन, अच्छा हम इसकी इमेजिनेशन कैसे करें अगर हम क्लास में, इमेजिन करो, अच्छा इमेजिन करो अपने दिमाग के अंदर कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इतना बड़ा है, ठीक है। अपने दिमाग में इमेजिन कर लो, कर लिया सारों ने अपने दिमाग में इमेजिन। अब ये सोचो कि क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे भी निकालना है, इस पॉइंट पे भी निकालना है, इस पॉइंट पे भी निकालना है, और उसके बाद इधर भी बाहर भी निकालना है, यानी आपकी घर तक मैंने निकालना है। अब अगर मैं जब मैक्सवेल की इक्वेशन लगाऊंगा तो कर्ल को जब मैं कैलकुलेट करना शुरू करूंगा, थोड़ा सा देखना शुरू करूंगा, तो मेरा जैसे जैसे वो लूप बड़ा होता जाएगा, आई एम कैप्चरिंग मोर एंड मोर मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है इस लूप के अंदर मैं जैसे जैसे चलता शुरू होऊंगा, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बड़ी होनी चाहिए फ्रॉम सेंटर टू दिस एंड ऑफ द लूप। दैट मेक्स इंट्यूटिव सेंस टू यू, ऑल ऑफ यू? यस सर। जबरदस्त। अच्छा, अब तुमसे वो वीक नहीं होगा सर, वीकर बाहर निकलने हो जाएगा। एक सेकंड, लेट मी फिनिश माय कमेंट्स। उसके बाद फिर मैं जब ये लूप से बाहर निकलूंगा, मैं चाहे इधर हूं या इधर हूं, मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी वो तो एक ही थी, लेकिन अब मैं दूर दूर होता जा रहा हूं। तो क्या एक्सपेक्ट करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? वीकर, कम वीकर होगा। Moving away from this loop, you will expect that electric field will start to lose its strength. So हमने इस इंट्यूशन से क्या एस्टैब्लिश किया? Wait second. Okay. अब हम ये डिस्कशन, कीप क्वाइट। जब मैं पूछूं किसी सवाल तो पूछे, डोंट मुझे इंटरप्ट ना करें प्लीज बीच में। सो व्हाट वुड हैपन कि मैं क्या कह रहा था, so I was saying कि ये प्रॉब्लम जब हमने सेटअप कर लिया है, हमें ये पता चल गया है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम में चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर्ली होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कोऑर्डिनेट्स जो होंगे मोस्ट लाइकलीहुड a5 डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि कर्ली होगा। a5 का तो कोऑर्डिनेट होना लाजमी है, ठीक है। और दूसरी बात, as you are moving away from the center and you still in the loop, as you are moving away from the center, आपको नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथन हो जाएगा अप टिल दिस पॉइंट। उसके बाद जब आप मूव करना शुरू करोगे, यहाँ पे मैक्सिमा के बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दो किस्म के होंगे। सो दिस काइंड ऑफ इंट्यूशन, देखो हम लोगों ने अपने बेसिक आर्गुमेंट्स के साथ ये इंट्यूशन डेवलप कर लिया और मुझे पता चल गया मेरा सोल्यूशन कैसा है। I am not talking कि मुझे एग्जैक्ट इक्वेशन पता चल गई सोल्यूशन की, लेकिन मुझे एक सोल्यूशन की हैयत पता चल गई, मुझे स्ट्रक्चर पता चल गया, मेरा सोल्यूशन किस तरह का होगा। सो लेट्स ट्राई नाउ। अब हम डाइव करते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर और हम एग्जैक्ट इक्वेशंस निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमारी जो इंट्यूशन है उसको बैक करता है ये सारी चीजें। ये सारा आपको बताने का मकसद इसलिए इंपॉर्टेंट है
कि it's not about this course, because when you electrical engineers or physicists, आप मैथ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं to understand problems, to develop design, to analyze. So आप अपने हेड में पहले अपने सोल्यूशन को कंस्ट्रक्ट करें और उसके बाद आप अपना डीप डाउन मैथ करें, ताकि आपका सोल्यूशन बैक करे, आपके सोल्यूशंस भी ठीक होंगे और आपकी एनालिसिस की भी ज्यादा बेहतरी आएगी। और आप एग्जाम्स में भी आप ऐसे ही सोचें, एक सवाल सॉल्व करने लगे हैं, इसका एंड सोल्यूशन क्या होगा, एंड लेट्स यू कार्व आउट दैट सोल्यूशन। ठीक हो गया? सो दैट हैविंग सेड दैट, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे ये पता है कि मेरी ये कर्ल की इक्वेशन है, ये विक्टोरियल इक्वेशन है। ठीक हो गया? कर्ल की ये विक्टोरियल इक्वेशन है। अब if I open up this curl in cylindrical coordinate systems, मेरा जो cylindrical coordinate system के अंदर कर्ल है वो मैं लिख सकता हूँ, which is equal to del cross E is equal to 1 over R partial EZ over partial phi minus partial E phi over partial Z AR plus partial ER over partial Z minus partial EZ over partial R A phi plus 1 over R partial R E phi over partial R minus 1 over R partial ER over partial phi AZ। ये मेरी कर्ल की इक्वेशन है। अब आपको पता है इस बात का कि ये बेसिकली 3 इक्वेशंस होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे B की डायरेक्शन पता है, इसका मतलब है राइट हैंड साइड इज इन द AZ डायरेक्शन। इसका मतलब बड़ा क्लियर है, इफ द राइट हैंड साइड इज इन द AZ डायरेक्शन, तो ये जब मैं कर्ल खोलूंगा तो ये तो मेरा 0 है, बिकॉज कंपोनेंट्स ही नहीं है B के, इसलिए ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब चक्कर ये है कि आई कैन सी दिस थिंग कि ये इक्वेशन मेरी 1 over R, और ये मेरे आर्गुमेंट्स आपने बहुत क्लियरली सुनने हैं, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज आर्गुमेंट्स वेल, और वो आपकी थोड़ी सी ये वेक्टर कैलकुलस को भी इम्प्रूव करेगी। सो अब आपकी इक्वेशन क्या बन गई, माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल t, और वो मैं लिख सकता हूँ जो मैंने ऊपर लिखा था, b नॉट साइन ओमेगा t। ये मेरी इक्वेशन है। ठीक है? z की डायरेक्शन में। अब सवाल ये है कि मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि ये स्टिल 2 कंपोनेंट्स की इक्वेशन है, मैं इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं क्या मेरा E जो है फाई डायरेक्शन में है या ER डायरेक्शन में है। एक बात तो बड़ी क्लियर है, हमारी इंट्यूशन ने बता दिया E फाई तो एग्जिस्ट करता ही करता है, उसमें तो 2 राय है नहीं, क्योंकि करली इफेक्ट तो होएगा ही होएगा। ठीक है ना? यू एग्री विद दैट पॉइंट? करली इफेक्ट तो होगा। तो E फाई का मतलब ये है, E फाई का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फाई कंपोनेंट है, और फाई कंपोनेंट कैसा होता है, वो जो सर्कल के अंदर होता है, सर्कल का जो टेंजेंट होता है, दैट्स फाई। अब मैंने ये चेक करना है बिफोर मैं अटेम्प्ट करूं, क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अच्छा, उसके लिए मैं क्या करूं, एक तो मेरी जो थोड़े से ज्यादा इंट्यूशन उनकी तेज है, वो शायद इस चीज को ऑलरेडी अप्रिशिएट कर रहे हो कि ये वाला मेरा कहता है कि रेडियल कंपोनेंट जो है ना, वो फाई के साथ वेरी कर रहा है। ये पॉसिबल नहीं लगता इंट्यूटिवली। वजह उसकी वजह ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक सिलेंडर के अंदर बंद है। ठीक है? सिलेंडर के अंदर बंद है, और वो सिलेंडर इन्फिनिट इन डायरेक्शन है। अब आप ये कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेडियल कंपोनेंट है ना, रेडियल कंपोनेंट का क्या मतलब है कि रेडियल कंपोनेंट का क्या मतलब है? रेडियल कंपोनेंट का मतलब है कि ये मेरा अगर सिलेंडर है, नहीं, अगर ये मेरा सिलेंडर है ना, रेडियल कंपोनेंट का मतलब ये है, इधर 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 इधर। इसका मतलब है मैं ये कह रहा हूं कि मेरा रेडियल कंपोनेंट ओवर द सिलेंडर फाई के साथ वेरी कर रहा है। that doesn't make sense to me। इंट्यूशन कहती है ऐसा नहीं होगा, और हम मैथमेटिक्स को साबित भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज है, वो ये कहता है कि मेरा जो फाई कंपोनेंट है, जो कि ये है, वो रेडियस के साथ बदलेगा।
दैट मेक सेंस। क्यों? क्योंकि फाई इस डायरेक्शन में, जब मैं रेडियस ये होगा तो फाई कंपोनेंट कुछ और हो जाएगा। दैट मेक सेंस। सो लेट्स ट्राई टू सी कि रेडियल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। हम क्या करते हैं, एज यू नो कि मेरी कर्ल की दो इक्वेशंस है ना, ये कपल्ड है। अगर एज टाइम में वेरी कर रहा है तो ई भी टाइम में वेरी करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द अदर इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी, ये वेरी करेगा, ठीक है, टाइम के अंदर। मेरी अदर इक्वेशन कहती है। अब मैंने ये चेक करना है क्या मेरा रेडियल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर मैं रेडियल कंपोनेंट इसका देखूंगा तो मैं रेडियल कंपोनेंट इसका भी देख लूंगा। ऐसा ही है ना, मैथ की इक्वेशन ये कहती है, सिंपल मैथमेटिक्स एनालिसिस ये कहता है। तो जब मैं इसका रेडियल कंपोनेंट देखूंगा आर का, वो क्या है, वो ये है 1 ओवर आर पार्शियल एच जी ओवर पार्शियल फाई माइनस पार्शियल एच फाई ओवर पार्शियल जी इज इक्वल टू एप्सिलॉन पार्शियल ई आर ओवर पार्शियल टी। अब आप ये देखो, मुझे गिवन मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, सिर्फ एजी डायरेक्शन में, और जो कि सिर्फ टाइम में बदल रहा है। टाइम में बदल रहा है और किस में बदल रहा है, आर में। क्योंकि आर जब लेस देन आर नॉट है तो मेरा बी कुछ और है, एंड व्हेन माय आर इज ग्रेटर देन आर नॉट मेरा बी कुछ और है। आर के साथ वेरी कर रहा है और टाइम में। तो अगर मैं इसको देखूं तो एच फाई तो है ही नहीं है, ये तो जीरो है। एच जी है लेकिन फाई के साथ उसकी वेरिएशन ही नहीं है, मुझे गिवन ही नहीं है। इसका मतलब है ये जीरो है, इसका मतलब है ई आर की टाइम के साथ वेरिएशन नहीं है। इसका मतलब पॉसिबली दिस इज जीरो। So what I am left with this equation actually a simple 1D equation जो कि ये कहती है 1 over r partial r e phi over partial r is equal to minus partial over partial t b naught sin omega t। ये मेरी इक्वेशन रहेगी। अब ये सिंपल 1D डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम बड़े आराम से बचपन से सॉल्व करते आए हुए हैं। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। इस r को मैं उधर ले जाऊंगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव मैं खत्म नहीं कर सकता क्योंकि r अंदर है इसके। इस r को मैं उधर ले जाऊंगा, ये इसका डेरिवेटिव ले लूंगा। सो ये क्या बन जाएगा, माइनस बी नॉट ओमेगा r कॉस ओमेगा टी। ये मैंने डेरिवेटिव लिया टाइम में, वो कॉस ओमेगा टी बन गया, ओमेगा भी बाहर आ जाएगा और वो r में ले गया। अब मैं क्या करूंगा, ई फाई को निकालने के लिए ये आर ई फाई ऐसे ही रहेगा, मैं इंटेग्रल लूंगा क्योंकि वो आर अंदर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानना, मैं आर को बाहर नहीं निकाल सकता, इसी तरह डिफाइंड है। सो ये माइनस बी नॉट ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी, और इसका मैं इंटेग्रल किस में लूंगा, डी आर में, ठीक है। I will take this integral in dr। अब इसका इंटेग्रल मैं किस किस में लूंगा, वो जो हमने शुरू में इंट्यूशन बनाई थी कि ये मेरा लूप है, और अगेन ये लूप तार नहीं है कोई, इट्स जस्ट ए सिलेंडर। ये सिलेंडर इमेजिनरी सिलेंडर है, सिलेंडर एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, वो बस ये कह दिया कोई भी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता है। सो अब आप ये देखोगे कि मैं जब इधर से उधर मूव करूंगा तो मेरा आर वेरी करता है 0 से आर नॉट, और उसके बाद वो आर नॉट कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि आपको पता है फ्रॉम, अगर मैं इस रीजन में हूंगा तो मेरा इंटीग्रेशन वेरिएबल सिर्फ 0 से r में रखूंगा। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। सो फॉर r लेस देन r नॉट माय r e phi इज इक्वल टू माइनस 0 r b नॉट ओमेगा r cos ओमेगा t dr। बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रल है जो कि बन जाएगा बी नॉट ओमेगा, ये बेसिकली डी आर आर स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा क्योंकि ये है बस वेरिएबल, बी नॉट आर स्क्वायर कॉस ओमेगा टी ओवर 2, ये आर ई फाई है। और इसको मैं क्या करूंगा, अब आर को मैं कैंसल आउट करूंगा। सो बेसिकली मेरा ई फाई, जो कि ई फाई का मतलब ये है बी नॉट ओमेगा आर cos ओमेगा t ओवर 2 a फाई डायरेक्शन में है फॉर r लेस देन r नॉट। ये मेरी इंट्यूशन है, नजर आ रहा है
कि जैसे जैसे मैं लूप में बढ़ता जा रहा हूं, मेरा आर बढ़ता जा रहा है, मेरा स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कर ली है. नाउ इफ आई गो आउट ऑफ दिस आर नॉट, तो मेरी इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी? अब क्योंकि मैं यहां पर खड़ा हूं और मैंने, चाहे मैं यहां पर हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर मैं यहां पर हूं या यहां पर हूं, मेरे लिए यही है पूरा मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो मेरा इंटीग्रेशन वेरिएबल अब कौन वो हो जाएगा, आर ई फाई इज इक्वल टू 0 से आर नॉट, पूरे का पूरा एरिया. ठीक है, सो जब मैं इसका इंटीग्रल करूंगा, सो ये बेसिकली व्हाट इट वुड हैपन, दिस वुड हैपन माइनस बी नॉट ओमेगा आर नॉट स्क्वायर कॉस ओमेगा टी. ये कांस्टेंट है आर नॉट, और फिर इस r को मैं इधर ले जाऊंगा तो आप देख सकते हो r के साथ डिवाइड हो रहा है फॉर r ग्रेटर देन r नॉट. वो जो हमने शुरू में इंट्यूशन बनाई थी कि इफ वी गो बियॉन्ड द सिलेंडर, beyond that cylindrical area, you can see r would increasing and this would start decreasing. So अगर मैं इसको थोड़ा सा वो दिखाने की कोशिश करूं, तो लेट्स से ये मेरा y और x है. ठीक है, तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरह सर्कुलर फॉर्म में होगा. ठीक है, ई फाई है ये, और मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द पेज है. ठीक है, और ये ई फाई जो है दिस इज डूइंग दिस. ठीक है, सो इसके अंदर मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है, जो मेरी समझाने की जो सारे, मैं थोड़ा सा आपको, जो मेरा गोल था वो ये था कि पहली बात तो ये कि थोड़ी सी इंट्यूशन डेवलप करना बड़ा जरूरी है किसी भी प्रॉब्लम के. तो दूसरी बात ये है कि आपने ये देखा इक्वेशंस को हमने कैसे मैनिपुलेट किया, क्योंकि मेरा बी का सिर्फ जी था तो मैंने डेल क्रॉस ई का सिर्फ जी कंपोनेंट लिया, यानी कि डेल क्रॉस ई का जी कंपोनेंट ये है. ठीक है, ये नहीं है जी कंपोनेंट ई जी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जी कंपोनेंट है. सो दैट्स वन थिंग. उसको इक्वेट करने के बाद फिर मैंने कुछ इंट्यूशन तो बनती है बड़े आराम से कि सिर्फ यही होगा, लेकिन अगर किसी की इंट्यूशन नहीं बनती तो हम मैथमेटिकली साबित कर सकते हैं कि ये वाला कंपोनेंट नहीं होगा. उसके लिए मैंने कर्ल की क्वेश्चन देखी, एच की, और अगर मैंने रेडियल कंपोनेंट को देखना है तो आई विल जस्ट टेक द रेडियल आर और मुझे नजर आ जाएगा कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो रेडियल आर भी मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा. और उसके बाद दिस बिकम्स अ सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, 1D डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हमने सॉल्व करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इन होल यूनिवर्स निकाल लिया. तो अब अगर सवाल ये है कि लेट्स से मेरा सिलेंडर जो है मेरे कमरे में पड़ा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके घर में कैसा फील होगा? आपको ऐसा फील होगा. ठीक है, और अगर इस सिलेंडर के अंदर मैंने देखना मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है तो ऐसा फील होगा. ठीक है, सो दैट्स समथिंग रियली नाइस. और आप थोड़ा सा ये सोचोगे, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको तैयार करूं आगे आने वाली चीजों के लिए, कि अगर आप अपने कमरे में चार्ज एक रखोगे वो हिल जाएगा बिकॉज ऑफ दिस माय सिलेंडर. कभी आप लोगों ने सोचा कि वो जो इतनी दूर सितारे हैं वो हमें कैसे नजर आते हैं? बिकॉज वहां पर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आके हमारी आंखों के इलेक्ट्रॉन्स को स्टिमुलेट करता है, इसी तरह ही जो मैंने आपको ये बताया है. So doing that. So this is the intuition and this is the a bit mathematics. ये cylindrical coordinates में मैंने intentionally किया है ताकि थोड़ा सा आपको चीज़ों की मज़ीद इन coordinates में अक्सर students comfortable नहीं होते, लेकिन I want you to make it comfortable. हमारी शायद बहुत सारी problems rectangular coordinates में ही रहें, लेकिन yeah, that's what I have. किसी का कोई सवाल इसके ऊपर, if you want to ask any question over this, so you can shoot. I am actually मैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग को, so that जो उन्होंने 1 घंटे की देखनी हो they can watch that, और उसके बाद I am still here and I can still be with you for answering any of your questions. So जो लोग देख रहे हैं वीडियो, अपना ख्याल रखें and I will see you on Wednesday.